multifunctional agriculture robot. We try to integrate almost every process like sowing, harvesting, irrigation and weeding in a single robot. At first, we have a humidity sensor under this. It can measure the humidity and the temperature of the soil, and it will display us the value of the humidities, and according to it we'll analyze the data and make sure that which crop should be grown in which region, and the need for the irrigation according to the humidity of the soil. And this is for the harvest. This is a harvester. We 3D printed it. It's a parallel gripper. We are integrating image processing to it so that it can identify the main crop and the weed crop. This is for sowing. It works under a slider crank mechanism. Which mechanism? Slider crank mechanism. What the slider crank? Converts circular motion to linear motion. Right. While moving, it sprays the seeds all over the field. And this is a water tank. That will be the water tank. Water tank. Okay, and that is the? For sowing the seeds. Okay, seeds. You can see a water pump under this. Okay, water pump. Right. Yeah, and then it will Right. The water flows through the pump, and Right. you can see a tube here which will rotate 0 to 180 Okay. degree. It's rotating right. It will spray the water all over the field. It's for irrigation. And this is a weeder. It's a continuous weeder. Okay. It can also be used for cleaning the land at a single stretch. Okay. Okay, tell me about the viability of this Viability. in the recent agriculture. You know about the Indian agriculture system, no? There are a shortage of laborers in agriculture right now. They're almost Recently. leaving the agriculture industry. Work, industry. So, like in this industrial revolution, Right. we have to make agriculture automated. It's a semi-automated device. That's why. It makes the work efficient and reduces the labor cost. Do you have given a proper name to this one? Yeah, this is a multifunctional agriculture. We named it Gen Z Farmer. Okay, Jain C. Farmer. What's your good name? I'm Mirnalini. From? Amrita University, Coimbatore. Tamil Nadu. Coimbatore. And what's your name? Muthakarpan from Amrita University. Okay. What about you? Sri Dhanush from Amrita School of Engineering. चले, all the best. Good morning, dear. क्या है ये? ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ हाउस होल्ड बॉट है। आजकल की मॉडर्न डे प्रॉब्लम ये है Multi-purpose? हाउस होल्ड बॉट। हाँ. आजकल की मॉडर्न डे प्रॉब्लम ये है कि घर पे दोनों पेरेंट्स तो साथ में रह नहीं सकते हर टाइम बच्चे के साथ। तो होता क्या है कि बच्चे को अगर केयर करना है बच्चे की, तो ये क्या करेगा, हमेशा बच्चे के साथ रहेगा और हमेशा उसे एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। अगर कहीं भी वो रूम कर रहा है बच्चा, तो हमेशा उससे कांस्टेंट डिस्टेंस फॉलो करता रहेगा। ओके. ठीक है, अगर मान लो कि उसके साथ कोई थेफ्ट आता है, कोई नाइफ आती है या फिर कोई उसके हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट आता है, तो वो क्या करेगा कि सीधा नोटिफिकेशन पेरेंट के मोबाइल ऐप पे भेज देगा, या कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन आता है तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन पेरेंट के पास चला जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन टाइम में कितना समय लगता है इसके? क्योंकि ये बहुत इंस्टेंटली होता है। हाँ, क्योंकि हमने इसमें अच्छा कंपोनेंट्स लगाया है, इसलिए इंस्टेंट हो जाएगा। क्या क्या कंपोनेंट्स है जरा बता। सो इसमें बेसिकली एक जेटसन नैनो लगाया है। जेटसन नैनो लगाया है जिसमें पूरा सीपीयू है, लाइक पूरा ब्रेन इसी में है। Okay. ये इससे फीड ले रहा है। Right. इससे फीड लेने ये के बाद कैमरा है इसमें- ना? हाँ, ये कैमरा कैमरा है। है। इससे फीड लेने के बाद इसमें रॉस रन हो रहा है, तो रॉस में पूरा मशीन लर्निंग हो रहा है। Right. तो ये कमांड दे रहा है माइक्रो कंट्रोलर को, जो कि यहाँ पे लगा है, यहाँ पे। तो ये माइक्रो कंट्रोलर पे कमांड देने के बाद वो पूरा प्रोसेसिंग करता है, और फिर प्रोसेस करने के बाद वो मोटर ड्राइवर को कमांड देता है कि टायर मूव करने की नहीं करने, जिससे ये आगे पीछे होता है। ओके. क्या रेंज होता है? ये पूरा ऑटोमेट है। इसकी नहीं, रेंज मतलब डिस्टेंस रेंज होगा ना कुछ पर्टिकुलर रेंज? जैसे पेरेंट्स अगर 100 मीटर हैं, हाँ। तो भी देगा ये? हाँ, ये पूरा ऑटोमेट है, इसको कोई हैंडल कर मैं उसका रेंज पूछ रहा हूँ मैं कि कितने रेंज तक जो है ना ये पूरे घर पे पूरे पे घर आपको के कोई लिए? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड है पूरे घर पे। वो नहीं, मेरी बात समझो। हाँ, मेरा ये कहना है कि चाइल्ड जो है, जैसे चाइल्ड जो है अगर 100 मीटर दूरी चला गया, हाँ। घर बहुत बड़ा है, 100 मीटर दूरी से जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये साथ ही साथ घूमता रहेगा हमेशा। अच्छा, हमेशा मतलब ये फिर उसको follow करता भी रहेगा। फिर भी कितना रेंज है डिस्टेंस का बच्चे के 2 साथ? मीटर के डिस्टेंस पे। ओके, अगर वो 2 चाहे मीटर। तो फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो एक फिक्स कर सकते हैं, जितना हमारा मन हो ओके, फिक्स कर सकते हैं। यानी ये हमेशा। ऐसा भी नहीं कि बच्चा इसके साथ खेलने लग जाए, हाँ, इसलिए 2 इसलिए मीटर थोड़ा का डिस्टेंस अंदर रखा है। distance maintain अच्छा, करते हैं। और बच्चा खेलने लगा तो
लाइक ये रुक जाएगा उसी जगह। लाइक वो हमने ये किया था कि वो अपने लॉक पोजीशन पे आके वापस चार्जिंग पे लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसके साथ? इसको बनाने में कितना समय लगा आप लोगों को? अभी ये 1 साल से चल रहा है और 1 साल से इस पर पूरा काम चल रहा है। और जैसे कि अभी इसमें और भी टाइम लगेगा क्योंकि ये अभी प्रोटोटाइप है, कि इसका Right. कंप्लीट नहीं बना है मॉडल। कंप्लीट मॉडल जब बनेगा तो और भी कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा मॉडल अभी आपके यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनिंग तो कर देगा लेकिन हर जगह पे तो जा नहीं अच्छा, पाएगा। वैक्यूम क्लीनर का भी काम करता है? वैक्यूम क्लीनर का भी काम करेगा ये। अच्छा, और क्या क्या काम करता है? और जैसे कि ये आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम करेगा ऑटोमेटिक। ओके, आपका जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो आपको पूरा घर में लेकर के मोबाइल नहीं घूमना पड़ेगा। ये अपने आप हर एक फैमिली मेंबर के पास जाके ये एक स्टिक पे कैमरा लगता है, ये हाँ, हाँ। हाइट पे हाँ। पूरा अपने आप सब मेंबर के पास जाके ये लाइव फीड दे सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा है। फिर आप चाहो तो बच्चे के इंटरैक्ट करने के लिए कुछ उसमें राइम्स भी डाल सकते हैं, आराम से उसमें साउंड मतलब बच्चा इसके साथ Automatic. खेले हाँ। वो भी कर सकते हैं। ओके, क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रांशु हो गया कहाँ से हो आप? IT बेचो से। ITBHS से हम। आर्यन यादव नाम है मेरा, मैं भी IITBHS से। ओके, ये कब से आप लोगों के दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी? ये हमने और कुछ सीनियर से मिलके बनाया है। कितने और- दिनों का ये मेहनत है? हाँ, पिछले 1 साल से चल रहा है। पिछले 1 साल से। चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ, गुड मॉर्निंग। बताओ क्या है ये? इसमें एक लाइडर और एक कैमरा है। जो लाइडर है वो आपका हाइट एस्टिमेशन कर देता है। अच्छा। हाँ, इधर आपका प्लेटफॉर्म का ये लाइडर मतलब? लाइडर हाँ। पूरी लाइडर है। हाँ। ये पॉइंट्स डिटेक्ट करता है आपके प्लेन पे, और प्लेटफॉर्म का पॉइंट्स नीचे रहेंगे और जो पैकेज है उसके पॉइंट्स ऊपर रहेंगे। उससे हाइट डिटेक्ट हो जाएगा, हाइट डिफरेंस है। किस चीज़ की हाइट के डिफरेंस को बताता है? पैकेज का हाइट। अच्छा, इस पैकेज की हाइट? हाँ। किसी भी तरीके के पैकेज को हाँ, अगर हाँ, रखें हाँ, किसी भी तो उसकी पैकेज। हाइट बताएगा। हाँ। और ओके। जो कैमरा है पीछे वो आपका कॉन्टूर बता देगा, जिससे पैकेज का शेप पता चल जाएगा ऊपर का। ओके, हाँ, उससे फिर हम एरिया इंटू हाइट करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, पर्टिकुलर दैट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हाँ उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। हाँ। ओके, और जो नीचे एक सेंसर लगा है उससे वेट निकल जाएगा। ओके, हाँ, तो ये कन्वेयर बेल्ट में यूज़ होगा पैकेजेस का वॉल्यूम और वेट निकालने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये माइनिंग में भी यूज हो सकता है? माइनिंग में जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में हाँ। कन्वेयर बहुत यूज होता है, अच्छा, हाँ हाँ, तो यूज़ हो सकता है। यूज हो सकता है ना? हाँ, पैकेजेस का जहाँ पे भी आपको वॉल्यूम वेट निकालना हो वहाँ यूज़ हो सकता है। और- ये हाँ। इससे पहले इंडस्ट्री में कोल्ड लैक्स में एक 3D लाइडर आता है, उससे हम वॉल्यूम और वेट निकालते थे। अच्छा, लेकिन ये सेटअप जो पूरा है वो 15,000 का, बिलो 15,000। बिलो 15,000, यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। Yes. ठीक है, क्या बात है। इसका इस सेटअप का नाम क्या दिया हो? रोबस्ट एंड एफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक वेट एस्टिमेट। ओके, रेवेक्स देख सकते हो आप। क्या नाम है आपका? वात्सल्य से वात्सल्य, कहाँ से हो? IITBHS ITBHS से। किस डिपार्टमेंट में हो? EC इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। क्या है ये? तो ये बेसिकली वेस्ट फ्लोटिंग मटेरियल को उठाने वाला एक प्रोजेक्ट है। वेस्ट? फ्लोटिंग मटेरियल। अच्छा, वेस्ट फ्लोटिंग मटेरियल जो आजकल नदियों में ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, जैसे प्लास्टिक हैंडेड एनिमल्स हैं, हाँ हाँ। वो सब है। हाँ, क्या है ये, कैसे फंक्शन, इसके बारे में कुछ बताओ। ये कन्वेयर बेल्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट ये उठाता है, ज़्यादातर छोटा वेस्ट ये होगा। हाँ। जैसे प्लास्टिक की बॉटल, कैंस, वो सब ये उठा देगा। ओके, उससे जो बड़ा वेस्ट होगा जैसे कॉर्ड्स टाइप, वो ये उसके लिए रोबोटिक आर्म लगा। अच्छा, ये वो वेस्ट कलेक्ट करेगा। यहाँ एक पीएच सेंसर भी लगा है पानी का पीएच वैल्यू जानने के लिए, और चारों एंड्स पे वाटर पंप लगे इसको चलाने के लिए। Okay. यहाँ पे एक कैमरा लगा जिसमें मूवमेंट है, जिससे कि Right. हम लोग देख सकें कि क्या कहाँ है क्या है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है ये नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट में काम आ सकता है। और फिर फ्यूचर में हम लोग ऐसा ऐड करने का सोच रहे हैं कि जिससे AI बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, जिससे ये उठा पाए अपने से कचरा बिना मतलब कोई अपने हिम्मत। से, मतलब लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं कि नदी साफ़ रहे हाँ, हाँ। या नाला साफ़ रहे, तो ईजली ये। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा जानवर मरा हुआ हो हाँ। तो कि आओ ये उठ ना पाए इससे, तो उस सिनेरियो में क्या करोगे? अभी ये फिलहाल है कि ये प्रोटोटाइप है। अच्छा। जब ये लार्ज स्केल में होगा तो फिर ये सब सेंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको बनाने में कितना खर्च आया आपको? 7 से 8,000। 7 to 8,000। ओके, और कितना वक्त लगा? 2 से 3 महीने। ओके, इसका नाम क्या दिए हो? एक्वाबॉल। एक्वाबॉल। हाँ, कितने दिनों में ये कराया आपने काम? ये 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने की मेहनत है। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अथर्व। अथर्व, हाँ, कहाँ से हो? वाराणसी से। किस क्लास में हो? क्लास 9। क्लास 9th में हो।
और किस स्कूल में? सनबीम सेंसिटिव। ओके, तुम जी? हम सार्थक वर्चस्वी हैं, हम सनबीम संस्कृति में पढ़ते हैं, क्लास 11th में। ओके, यानी सीनियर और जूनियर दोनों मिल के ये काम किए। बधाई हो आप सभी को। और नमामि नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका नहीं ना मिला अभी, होप्स कि आपको ये मिले। चलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर। नमस्ते। एक ऑटोनोमस ड्रोन है, AI ड्रोन है। तो फिर ऑटोनोमस ड्रोन। हाँ, ओके ऑटोनोमस ड्रोन है, मतलब ये पैकेजेस को पिक एंड ड्रॉप कर सकता है ऑटोमेटिकली। ओके। यहाँ पे एक फिसाई कैमरा लगा हुआ है, हाँ, जिसकी फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड है। और तो बेसिकली ऐसा होता है कि ये अरीना है, अरीना में ड्रोन अपना जब टेक ओवर करता है, इससे बाकी एयरप्लेन टैग्स दिखते हैं। ठीक है, तो फिर जब ये वो एयरप्लेन टैग्स इस ड्रोन की फील्ड ऑफ इस कैमरा की फील्ड ऑफ व्यू में आती है, तब ड्रोन का पोजीशन पता चलता है। ओके। और हर सेकंड में 40 टाइम्स इसको ड्रोन की पोजीशन पता चलती है। और यहाँ ये पर- बताओ, ये कितने लोड तक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पिक एंड ड्रॉप कर सकता है? 1 kg तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैक्सिमम। ये तो 50 ग्राम के बॉक्स के लिए बना है। हमारे पास दूसरा मैग्नेट है हाँ। और एक मैकेनिक वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर है लगा के अलग से, ओके, उसमें मतलब 1 kg उठा जाएगा। 1 kg तक का। मतलब इसे अगर इसे बनाना चाहे तो आदमी बहुत ज़्यादा वजन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वो ड्रोन की कैपेसिटी मतलब बढ़ानी पड़ेगी उस हिसाब से। ओके। ऐसे स्केल अप करना पड़ेगा। इसमें कितना खर्च है पर्टिकुलर इस सेटअप को? खर्च में तो देखिए, अगर आपको एक मैनुअल कंट्रोल बेसिक ड्रोन बनाना है तो आपका 25,000 के आसपास बन जाएगा। 25,000। हाँ, लेकिन जब आप ऑटोनॉमी वगैरह में जाते हैं तो जैसे कंप्यूटर यही 35,000 का है। ओके। और तो ये हमें सब ऑब्स्टेकल तो अवॉइडेंस, ऐसे अगर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वगैरह करनी है तो हमें इंटेल का रियलसेंस कैमरा खरीदना पड़ता है। वही आता है 60,000 तक आता है। तो फिर हमने इसमें इंटेल का रियलसेंस कैमरा भी यूज़ किया था। अभी कितना खर्च हुआ है इसमें? अभी ये 70-80 हज़ार का है। ओके। एक कैमरा है, वो लगा देंगे तो 1.5 लाख के आसपास का हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितना टाइम लगा बनाने में? 5 महीने लगेंगे। 5 मंथ्स। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम हेमंत पटेल है। यहीं से हो? हाँ, हम ये यहाँ IIT से मैकेनिकल। ओके। और आपका? विज्ञान मिश्रा है, मैं भी मैकेनिकल से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नाम रखा है AI ड्रोन ना? यस, क्या किस नाम से बुलाते हो? चिड़िया नाम से। चिड़िया। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली ये आप सभी को नमस्कार। ये बताओ क्या है आपका? ये सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम है जो हमारे सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम। ओके। जो हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं या फिर जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें मतलब ये सबसे कॉमन इशू रहता है कि वो डस्ट उसमें बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो एक मैनुअल लेवल लगता है हमारा, जिस सोलर पैनल को साफ करने के सोलर लिए। पैनल को साफ करने के लिए बिल्कुल। अलग से मैनुअल लेवल लगता है हाँ। कि वो जा करके उसको प्रॉपर क्लीन करो, वो 2 दिन 3 दिन पे करना पड़ता है। राइट। बट अगर हम लोग इस मॉडल को अगर हम लोग यूज़ करके इसको अच्छे से स्केल करके अगर हम लोग वो सेटअप करें तो हमारा ये लेवल बच सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या एफिशिएंट मतलब ऑल एंड एवरेज इसकी स्टडी किए होगे तो इसका एफिशिएंट पैरामीटर मतलब इसकी क्या मतलब क्या क्षमता इसका रहेगी? advantage है? हाँ, नहीं, एफिशिएंट कितना एफिशिएंट है ये? एफिशिएंट ये है कि अगर इसको आप पर डे के हिसाब से इसको पीरियोडिकली आप चला सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे आप मतलब ये आपको डस्ट सेंस करेगा या ऑल करेगा, क्योंकि ये आपका एक्सपोजर हमेशा है सोलर पैनल का। अगर सोलर पैनल का एक्सपोजर हमेशा ये इसको आपका क्या क्या कंटेंट है? ये सोलर पैनल है नहीं ना? नहीं, ये सोलर पैनल हाँ। हम लोग ने नॉर्मल प्लाई यूज़ किया है। वेस्ट मटेरियल। सोलर पैनल कहाँ पे रहेगा आपका? सोलर पैनल इसी जगह पे रहेगा जहाँ पे वो इंस्टॉल रहेगा, वो ये सेटअप ऐसा होगा। ओके। और ये साफ़ करने का? हाँ, ये साफ करने का। और अगर जब हम लोग सोलर पैनल यूज़ करेंगे तो मे बी वी कैन यूज़ मोर बेटर प्लस। अच्छा, इसकी वर्किंग दिखा सकते हो कैसे वर्क करेगा? हाँ, वो ऑब्जर्व किया। थोड़ा सा वो सपोज ये इस तरह से आ करके इसके बाद ये हम लोगों ने सर्वो मोटर का यूनो से कनेक्ट करके यूज़ किया। ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद ये पानी पूरा इस पर स्प्रिंकल कर देगा। ओके। ये ऑटोमेटिकली हो गया, फिर 3 सेकंड के बाद ये खुद बंद हो गया। ओके, हम ऊपर जाकर ये हमें पानी हमें नहीं देना करना पड़ेगा, पड़ेगा। क्लीन करना पड़ेगा। राइट, ये हमारा राइट, कोड है इस तरह का। फिर हम लोग पोलैरिटी चेंज कर करके फिर से इसको इसको back मतलब कर पानी आ सकते जाएगा तो फिर से इसको हम बैक कर सकते हैं। चलो थोड़ा गीला हो गया है इस वजह से। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, इसको बनाने में कितना खर्च आया आपको? खर्च आई गेस अगर हम लोगों को देखा जाए, क्योंकि हम लोग एक टीम को बिलोंग करते हैं, तो टीम को बिलोंग करते हैं तो बस हमें ये दोनों को खर्च पड़ा।
Okay. ये टैप और इसका बाकी चीज़ें हमारे पास होती है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अगर आप सब कुछ अगर जीरो से बना रहे हो और सेम सेटअप के साथ बना रहे हो तो 1500 से 2000 आएगा इसमें, मतलब मैक्सिमम है। इसमें से भी मैक्सिमम कॉस्ट आपको इसका मोटर का ही पड़ेगा। बाकी सारे कुछ ये 120 150 में अवेलेबल है। मतलब ये सबसे हाई कॉस्टेड है मोटर, और उसके बाद ये है थोड़ा सा कॉस्टेड। अच्छा। और सारे सब कुछ तो वैसे तो घर में ये मिलती सिंपल है। बैटरीज है, सिंपल रेड बोर्ड हो गया बैटरी। ये नॉर्मल। ये कितने दिनों की मेहनत है आपकी? ये तो हमने काफ़ी क्विक बनाया है, ये 2 से 3 दिन में ये बनाया है। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत संगर। कहाँ से हो? स्लाइड पंजाब। अच्छा, पंजाब से आए हो आप लोग। आपका गुड नेम? स्नेहा दास फ्रॉम स्लाइड लॉन्गवाल पंजाब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। टेल मी समथिंग अबाउट दिस वन। This is a robot petroling robot. Petroling robot. Petroling robot. Okay. Galaxy petroling robot. Okay. And we are dedicated this robot for 3 multi-purposes. Okay. The first thing is that there are few areas where human outreach is very less. Right. But we have to configure out ki what object, what activities are there. Right. So for that we are implementing AI and machine learning algorithm which can easily detect वहाँ पे कौन सा object है और क्या activities है, right? The second thing is that there are few mines where we are not ready to take human life at risk by sending them there. So we are good to send this there and it can easily grasp कि वहाँ पे है क्या. The third which we are trying to implement but not yet implemented, that is called the LiDAR sensor. Right. And what we are going to do is to implement a LiDAR sensor, and by the laser technology we can get the 3D map of the area without involvement of a lot of physical effort of humans. Right. It enhances the discovery. Like if you heard, the Egypt's pyramid was 3D map was developed by the LiDAR. So that Okay. was At that time. exactly not that time. It's been around 10 years back. No, And no, maybe no. recently in Myanmar dynasty, the Myanmar dynasty was discovered by the laser technology. Right. That's what I'm actually trying to So some parts. Some parts. Define some parts. Relation with this In one. this prototype, we have used Arduino Mega for programming the whole board. Pardon? This is Arduino Mega Okay. microcontroller, which Right. is used to control all the board. Yeah. We have a prototype program over here, and this is our motor shield. And all the 4 motors, 4 DC motors are connected here. And this is our independent power supply of 12 volt. तो होता क्या है कि जैसे आप सिग्नल भेजते हैं, एक चीज़ मैं बताना भूले, हमारा ब्लूटूथ 605 मॉड्यूल है जिससे हमारा ऐप कनेक्टेड होता है वायरलेसली। तो जैसे ही आपने वहाँ से फॉरवर्ड का सिग्नल भेजा, इस ब्लूटूथ ने आर्डुइनो को बोल दिया कि भाई फॉरवर्ड सिग्नल आया है। तो उसी के हिसाब से चारों मोटर्स को फॉरवर्ड के लिए एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मिला, करंट मिलता है, तो दोनों आगे को मूव करते हैं। Right. वहीं पर अगर लेफ्ट होने का लेफ्ट टर्न आया तो जो इस साइड के 2 मोटर्स हैं ये पीछे घूमेंगे, एंड इस साइड के 2 मोटर्स हैं ये आगे घूमेंगे। तो Okay. अपोजिट Left. टॉर्क से ये ऐसे घूम Right. जाएगा। Okay. In the similar fashion, they will take the right turn. Yes, in a similar fashion, it will turn right. Okay. थोड़ा सा चला के दिखाओगे? चला के बिल्कुल करेंगे। ग्रेट। इसका कितना प्राइस पड़ा है? आप लोगों का जो एफर्ट है वो कितना पैसा लगाने पे ये हुआ है? इसमें ओवरऑल 6 to 7,000 rupees. 6 to 7,000 काफ़ी मतलब कॉस्ट एफिशिएंट है। हाँ वही हाँ। Exactly. और कितना समय लगा? It's been around 2 months. 2 months to develop. ओके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनुराग पांडे। कहाँ से हो? I am from Mirzapur but studying in NIT Raipur. NIT रायपुर। ग्रेट। व्हाट्स योर नेम? I am Mohit Singh from Kanpur, but studying in NIT Raipur first year. I am Chirag Chandnani from Bilaspur, Chhattisgarh. I am currently studying at NIT Raipur first year. You all are from the same college? Yeah. Good name? Myself Sushant Kumar Jha from Patna, Bihar. I am from NIT Raipur. And you all have the same branch? Yes, sir. That's great. Wish you all the best. Okay, thank you, sir.